Okay, we are starting, guys. Hi, everyone. This is the second day of our workshop, and today we'll discuss iteration, right, in loops, in for loops. Then we'll discuss nested loops, right. Loop inside loop is called nested loop. So we'll discuss nested loops. After that, we will discuss pattern printing, how we can print the pattern, right, when we go for any company interview or when we go for any company exam, right. So there might be asked questions regarding pattern printing, regarding star pyramid printing or half pyramid printing, like that half pyramid of stars, right? In first line we have one star, in second line we have two star, in third line we have three star, in fourth line we have four star, like that pattern, right? So these kinds of questions are asked by the companies. So these questions will solve. After that, we'll also include one topic, that is string slicing in this second day of workshop. So we'll also perform some string slicing questions and string slicing. Okay. Okay. So we are starting with iteration of for loop, with iteration of for loops. Okay. So what is iteration and how the iteration works, right? So yesterday we have discussed regarding for loops, right? How the for loop will work and how for loop iterate the things. Like if we have one string that is as an in strings, uh, there is my name called Kapil, and if I want to iterate this, if I want to print one by one, or if I want to iterate from start to end, so how I can iterate, like I'm having just simple code for I in s, and after that I can just print I, and I is a temporary variable, and that variable stores, right, the value of s, which is present at ith position. Ith position means zeroth positions, one position, two position, three positions, fourth position, like that, right? So in this way iteration works. So if I print I, then it will give me my name, right, in iteration wise, means in line by line format. Okay. So let's code a simple logic question, right, from HackerRank. Right. This is the question. I'm sharing a link with you guys in the chat. We'll start with HackerRank question. And this is the first question of second day workshop. Okay. So this is the question of factorial, right? You might be aware about factorial, what is factorial and how factorial works, right? So this is the question of HackerRank. Okay. No, just a minute. HackerRank. This is the question of. This is the question of HackerRank. Okay, I have shared a link with you guys. Okay, so we are starting. And this question is related to factorial, right? How we can find the factorial. So the task is, here we are having one number, that is C, that is count, number n, and factorial one, that is also a variable, these three variable, and we need to give one simple output, and that is the factorial of any number, right? So how we can find the factorial of any number? If we have, let's say, if we have a number 5, or if we have a number 3, so how we can find the factorial of 3? So factorial of 3 equals to 3 into 2 into 1 equals to the factorial of 3, that is 6. Take. Similarly, if I am having a number 5, and if I want to find the factorial of this 5, right, how can I find 5 into 4 into 3 into 2 into 1? This is the factorial. This is the formula for factorial. Okay? Means n into n minus 1 into n minus 1 into n minus 1, like that. Okay? If I want to find the factorial of 4, so what is the factorial of 4? 4 into 3 into 2 into 1. Okay? So this is the factorial of 4. And what is the factorial of 0? The factorial of 0 equals to 1.
ठीक, the factorial of 0 equals to 1, the factorial of 1 equals to 1, and the factorial of 2 equals to 2 into 1 equals to 2. ठीक है. So the factorial problem is clear, guys. How we what is the problem? ठीक है. How we can calculate the factorial of any given number. If I'm having one number n and the value of n is 6, so how I can find the factorial? Is this as clear, guys? Is this as clear? If it is clear, then type yes or CLR in the chat box. Okay, so we can start with our first coding question, that is factorial of n number, the factorial of n. Okay, okay, so we are starting with this. So let's say I'm having number n, and n number, it might be 6, it might be 7, it might be anything. We are taking the input from the user. Okay, we are taking input from the user, and input is an integer. Okay, so we have taken the input from the user, and after that, what we will do, we will iterate that number. Let's say I'm having number 6 and I just want to iterate this. So from where I can iterate? From for loop I can iterate, like, because for loop will work from 0 to n minus 1. Okay, for loop will work from 0 to n minus 1. If I want, then it will work from 1 to n plus 1. It will also execute to 1 to n plus 1. ठीक है, तो हम execute करवाने की कोशिश करते हैं इसको. ठीक, तो for loop हमने लिया for I in range of, for I in range of, from कहाँ से लेना है हमको? We just want, right? We want, if we want to find the factorial of 6, then factorial of 6 should be 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1. Then it will be 1, right? So first I want 1, then I want 2, 3, 4, 5, 6, like that. First I want this 1. Okay? So the range would be start from 1. In this way, the range would be start from 1, and the range would be goes to n plus 1. Why this is n plus 1? Because for loop will always execute from 0 to n minus 1. Okay, n minus 1. If I also want to include this number, if I also want to include n number, means 6 number, then I have to given here n plus 1. ठीक है, this is clear. यहाँ पे मेरे को n plus 1 देना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को n तक चलाना है, मेरे को n तक इंटू चाहिए. 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, like that. I want like that. ठीक है, तो इसलिए मेरे को n तक उसको चलाना पड़ेगा. ठीक, उसके बाद में मैं एक वेरिएबल ले लूंगा, एक सिंपल एक छोटा सा वेरिएबल ले लूंगा, दैट इज फैक्ट. और फैक्ट की वैल्यू शुड बी 1, बिकॉज 1 into anything equals to anything. और if I say 0 into anything, 0 into n equals to 0. ठीक है, it will be giving me 0. That's why I am taking here 1, because 1 into anything, 1 into n equals to n. ठीक है, और 1 into 5 equals to 5. ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूंगा, अगर मैं यहाँ पे 0 ले लूंगा, तो किसी से भी इंटू करूंगा तो 0 हो जाएगा. लेट्स से यहाँ पे 4 आया, तो 4 into 0 equals to 0 हो जाएगा. एंड आई डोंट वांट 0. ठीक है, आई वांट दैट नंबर, आई वांट फैक्टोरियल. ठीक, तो मैंने एक फैक्ट वेरिएबल ले लिया. ठीक है, फैक्ट वेरिएबल की वैल्यू मैंने 1 रख दी, और फिर मैं क्या करूंगा, इस फैक्ट वेरिएबल के अंदर हर बार चीजों को इंटू करवा के स्टोर करते जाऊंगा. ठीक है, तो फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इंटू आई. And what is I? I is, what is I? I is 1, I is 1, I is 2, I is 3, I is 4 till n. I is till n. ठीक है, तो I ऐसा आता जाएगा, और वो मेरा इसके अंदर इंक्लूड होता जाएगा. ठीक है, लाइक दैट. और यहाँ पे मैं एट द एंड आई विल प्रिंट फैक्ट. ठीक है, आई विल प्रिंट फैक्ट. दिस इज अ सिंपल कोड ऑफ फैक्टोरियल of any given number. Let's say I'm giving here 5. I'm giving here 5, so 5 का factorial is 120. ठीक है, how it is calculating? It is calculating by multiplication of 5 to 1. ठीक है, 5 to 1 means 5 into 4 into 3 into 2 into 1. That's how it is calculated. So that is the simple code of this program, of this factorial finding program. ठीक है, यहाँ पे अगर मैं कोड लिखूंगा पाइथन में, ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. अगर मैं यहाँ पे कोड लिखूंगा, तो आई कैन डायरेक्टली राइट, और आई कैन मेक अ फंक्शन, राइट. वी विल डिस्कस अबाउट फंक्शन इन टुमारोज क्लास. ठीक है, कल की क्लास में हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस को, तो हम फिर कल से छोटे छोटे प्रोग्राम के लिए फंक्शंस बनाना स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो अभी हम बिना फंक्शन से कर रहे हैं इसको. ठीक है, सिंपल सिंपल. ठीक है, तो वी विल टेक अ इनपुट फ्रॉम यूजर, और वी कैन डायरेक्टली कॉपी पेस्ट दिस कोड, बिकॉज जस्ट नाउ वी हैव रिटन दिस. ठीक है, तो वी विल डायरेक्टली कॉपी पेस्ट ओवर हियर, and we will try to execute this.
ठीक है, the sample case has been passed. We will submit this code. और ये सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं, ठीक है. So this is the simple code of factorial or iteration of any n numbers. ठीक है, iteration of any given number. ठीक है, that's how we are iterating this number from 1 to n, from 1 to n plus 1. ठीक है, that's how we are iterating. Is this is clear guys? ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है और सब ये क्वेश्चन कर रहे हैं चैट में. मेरे को यस टाइप करो अगर तुम सब लोग कर रहे हो तो. टाइप यस इन द चैट बॉक्स इफ यू आर डूइंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, because this is the first question of second day workshop. ठीक है, okay, most of the people have done that. ठीक है, we'll move forward to nested loop. ठीक है, this is our next topic of today's class. We'll move forward to nested loop. What is nested loop? Nested loop is like a loop inside loop. What we have learned yesterday and today, we have learned a simple loop. Simple loop means this is the simple loop. This is a single loop, right? If we want that, if you want that there is one loop and inside there is also another loop, then it is called a nested loop. Like if we have one loop for loop and inside that for loop we have another for loop, and this is called nested loop. ठीक, बहुत वाइडली तो यूज नहीं होता ये, बट हम इसको यूज करते हैं बहुत जगह पे. ठीक है, व्हेन वी वांट टू प्रिंट सम पैटर्न, व्हेन वी वांट टू प्रिंट समथिंग like in iteration, in double iterations, so at that time we will use, when we want to print a pattern like this. ठीक है, a pattern like this. If you want to print a pattern like a pyramid or double pyramid or single pyramid, in this case, right, we'll use a nested loop. ठीक है, and how it works, right, let me explain you how it works. Let's say I'm having number n, or let's say I just want to print something, right, in a square manner. Let's say I want to print something in a square manner, means 5 into 5, or 5 into 4 into 3 into 2 into 1, like that. Okay, so how the nested loop will work, let me explain. Let's say I'm having one loop. In that loop, for I in range of 5. Okay, so this loop will execute from this loop will execute from 0 till 4. Okay, 0 till 4 means 0 to n minus 1. N is 5, or 5 minus 1 equals to 4. So this loop will execute from 0 to n minus 1. Okay, this loop will execute. After that, if we bring one nested loop inside this, okay, if we bring one nested loop for j in range of, for j in range of 5, let's say I also given 5. ठीक है, तो how this loop will work? ठीक है, I will print my name couple. ठीक है, and then we'll execute this. ठीक है, and after that I will also give one line separator, or I will give star 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 star, so that we will differentiate this how it is working. ठीक है, how it is working. ठीक है, it will print couple 25 times. And how it is printing, right? Let me execute this. Let me execute how it is printing. First, this loop will execute 5 times from 0 to 5, from 0 to 5, and this loop will execute how much time? This loop is also execute 5 times, but for 0 it will execute 5 times, for 1 it will execute 5 times. Okay, for 2 it will execute 5 times, for 3 it will execute 5 times, for 4 it will execute 5 times, and for 5 it will execute 5 times. So it means it will execute 25 times. Okay, this code will execute 25 times. ठीक, let me explain once more. ठीक है, सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे 0 के लिए चलेगा, तो द आई की वैल्यू इक्वल्स टू 0. इफ आई की वैल्यू इक्वल्स टू 0, देन जी की वैल्यू, देन जे की वैल्यू इक्वल्स टू 0. दे की वैल्यू विल बी 0, will be 1, will be 2, will be 3, will be 4, and will be 5. Then 5 time couple will be printed. This 5 time couple will be printed. This code will execute. After that, this loop get terminated because I in range of 4.
ठीक है, 5 टाइम प्रिंट हुआ, उसके बाद टर्मिनेट हो जाएगा, फिर ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस लूप के बाहर है, ये वाला जो है ये इस लूप के बाहर है, ठीक है। सो स्टार प्रिंट हो जाएगा, दिस स्टार विल एग्जीक्यूट। आफ्टर दैट आई की वैल्यू आई इक्वल्स टू आई प्लस वन, मींस आई की वैल्यू आई इक्वल्स टू वन, देन जे की वैल्यू इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5, इट विल एग्जीक्यूट 5 टाइम, देन आफ्टर आई की वैल्यू 2, देन इट विल एग्जीक्यूट 5 टाइम, देन आई की वैल्यू 3, ठीक है, देन विल इट विल एग्जीक्यूट 5 टाइम, लाइक दैट इट विल एग्जीक्यूट, ठीक है। सो इन दिस वे नेस्टेड लूप विल वर्क। सो नेस्टेड लूप इज क्लियर गाइस? Any question, any doubt regarding this, regarding nested loop, how it is working, right? I have I have I have introduced you with working of nested loop, how it is working from from 0 to n minus 1, and from j is executing from 0 to n minus 1. This is how it will execute. इसमें कोई डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो तो फिर मेरे को बताओ चैट में, ठीक है। ऐसे नेस्टेड लूप काम करता है। ये क्लियर है गाइस? इफ इट इज क्लियर देन टाइप yes in the chat box. If it is clear then we'll move forward, we'll move towards the next topic, ठीक है। If it is clear, then type yes in the chat box. We'll move forward to next topic. Okay, we'll move forward to pattern printing. How we can print a pattern, and how the companies are asking the question. Like if we give some exam of maybe a TCS NQT or Code Vita or NPTQ, like this type of question might be asked. Like you have to print half pyramid pattern. Half pyramid pattern means half pyramid pattern, like 1 star, 2 star, then third line 3 star, then fourth line 4 star, then fifth line 5 star, like that. Or it might be asked like you have to print a simple pyramid, like that, 1 star in single line, then 2 star in second line, then 3 star or 4 star in third line, then 5 star or 6 star in next line, like that. Like that pattern will be asked. Maybe that they will ask the half pyramid, maybe they will ask a full pyramid, like these type of question asked by the companies, ठीक है। तो वो कैसे प्रिंट करते हैं, वो पाइथन में कैसे प्रिंट करते हैं? तो इट विल प्रिंट बाय नेस्टेड लूप, और इट विल आल्सो प्रिंट बाय सिंगल लूप, ठीक है। तो सिंगल लूप से भी प्रिंट हो जाएगा ये, ठीक है, और नेस्टेड लूप से भी प्रिंट हो जाएगा। कैसे भी प्रिंट कर सकते हैं ये, हम ऐसा नहीं कि हम सिंगल से ही प्रिंट होगा या फिर डबल से ही होगा। इट विल, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कहाँ से प्रिंट करना है, ठीक है। तो हम सिंगल से भी प्रिंट कर सकते हैं, नेस्टेड से भी, मतलब डबल वाले लूप से भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सिंगल से होगा क्योंकि इसके अंदर हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कम होगी, क्योंकि एक लूप लग रहा है। इसके अंदर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होगी क्योंकि 2 लूप लग रहा है, ठीक है। टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों बढ़ जाएगी, ठीक है। So we'll start with n printing. Let's say I just want to print a half pyramid like this. In this, we have 1 star in single line, we have 2 star in second line, we have 3 star in third line, we have 4 star in fourth line. Like that, I want to print. Like so, how can I print? How can I print? With the help of for loop, I can print. Okay. How can I print? In the first line, I will print 1 star. In the second line, I will print 2 star. In the third line, I will print 3 star. Like that, I will print. Okay. So let's say I'm having value n is 5, and I want to print 5 star at the end and 1 star in the first line. Okay. So how can I print? I will I will execute with loop for I in range of 5, for I in for I in range of 1 to n plus 1. ठीक, n plus 1, ठीक है, means it will execute to 1, it will execute from 1 to n plus 1. When why we are taking 1? Because we just want a star to be printed 1 time or 2 time or 3 time, that's why. Okay, we'll start from 1. Okay, then we'll print start, then we'll print star, and star will be printed, star will be printed in multiplication of I. Multiplication of I means in the first line it will be printed 1 star, ठीक है, means I into 1, ठीक है, और 1 into star, 1 into star means 1 into star is 1 star, 2 into star is 2 star, ठीक है, और 3 into star is equals to 3 star, like this, it will be printed, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन दे दूंगा, और मल्टीप्लिकेशन में लिख दूंगा आई। आई मतलब कि जितना आई होगा उतनी बार ये आई, ये स्टार प्रिंट हो जाएगा, जितने भी आई होगा, 1 बार 2 बार 3 बार, ठीक है।
और जैसे ये लूप i+1 होगा तो लाइन अपने आप चेंज हो जाएगी, वी डोंट हैव टू प्रिंट इन द न्यू लाइन। ठीक है, अपने आप लाइन चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम 5 के लिए। ठीक है, तो 5 के लिए एग्जीक्यूट किया हमने, तो एक लाइन के अंदर हमारा प्रिंट हो गया 1 स्टार, 2 लाइन में 2 स्टार, 3 लाइन में 3, 4 में 4 और 5 में 5। ठीक है, इफ आई वॉन्ट टू प्रिंट लाइक इट फॉर 30 टाइम्स, ठीक है, तो इट विल बी प्रिंटेड लाइक दिस। ठीक है, इट विल बी गिव मी बिग बिग pyramid। ठीक है, like that we can print with the help of nested loop also we can print, but with the help of single loop also we can print। ठीक है, with the help of both loop we can print। ठीक है, तो मैंने इसके अंदर 2 क्वेश्चन ऐड किए हुए हैं, ये वाले स्टार वाले। पहला हाफ पिरामिड मैंने अभी करवा दिया तुमको, फुल पिरामिड मैंने होमवर्क में इंक्लूड किया है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट फुल पिरामिड, राइट, वी विल डिस्कस इन अ Q&A सेशन, और वी विल डिस्कस इन दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग क्लास ऑफ फ्राइडे। ठीक है, अगर तुम लोग नहीं कर पाते हो, अगर किसी को कोई डाउट होता है उसमें कि क्या चीजें समझ नहीं आ रही, मुझसे फुल पिरामिड प्रिंट नहीं हो रहा, फुल पिरामिड मीन्स लाइक दिस इट विल बी प्रिंटेड, मेरे से फुल पिरामिड प्रिंट नहीं हो रहा, तो आई विल शो यू। ठीक है, हाउ वी कैन डू विद दिस फॉर लूप। ठीक है, हाउ वी कैन डू विद दिस फॉर लूप। लेट मी गिव यू द आइडिया ऑफ फुल पिरामिड, हाउ यू कैन प्रिंट द फुल पिरामिड। सिंपल सा फंडा है फुल पिरामिड का। आपको स्पेस लेना पड़ेगा, मीन्स इफ वी हैव 5 वैल्यूज, ठीक है, तो आपको पहले 5 स्पेस छोड़ने, 3 4 5 स्पेस छोड़ने, फिर एक प्रिंट करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में आपको 1 2 3 4 स्पेस छोड़ने, फिर आपको 2 स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे 1 2 स्पेस छोड़ने, फिर आपको 3 स्टार प्रिंट करना है। ठीक है, लाइक दैट इट विल वर्क। ठीक है, 3 स्टार, फिर तुमने 4 स्टार प्रिंट कर दिए नेक्स्ट लाइन में, फिर 5 स्टार प्रिंट कर दिए। ठीक है, तो इट विल एग्जीक्यूट लाइक दिस। ठीक है, ऐसा एक पिरामिड बन जाएगा तुम्हारा, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है ना, वैसे अगर तुम्हारा छोटा सा वैसा पिरामिड बन जाएगा। ठीक है, तो ये हाफ पिरामिड था। फुल पिरामिड तुम लोग देखना, ठीक है, होमवर्क में मैंने दिया हुआ है। इफ यू आर नॉट एबल टू डू दैट, वी विल डू इन अ Q&A सेशन। ठीक है, यू कैन एक्सप्लेन वंस मोर। ठीक है, ये वाला एक्सप्लेन करना है, सिंपल सिंगल पिरामिड एक्सप्लेन करना है प्रफुल, आई विल एक्सप्लेन यू। लेट से आई जस्ट want to print star 1 star in a single line, 2 star in a double line, or 3 star in a third line, like that I just want to print. So how this code will execute, let me execute this. Let's say I key value from 1 to n plus 1. So I key value here, the n is 10। ठीक है, so I key value is start from 1, I key value start from 1। Let's say now I key value is 1। ठीक है, so print function will print, ठीक है, this code will execute, and print function will print star into I। Star into I means I की value is 1, so star into 1, 1 star will be printed। ठीक है, then the code again, the loop will execute and I की value will be 2। ठीक है, बिकॉज I की वैल्यू इज स्टार्ट फ्रॉम 1 टू n+1। ठीक है, इट विल गोज टू 9, 0 to 9, 0 to 9, इट विल गोज टू 9। ठीक है, तो I की वैल्यू विल बी 2, सो स्टार इंटू 2 इक्वल्स टू 2 स्टार। ठीक है, तो 2 स्टार विल बी प्रिंटेड, देन I की वैल्यू विल बी 3। ठीक है, सो स्टार इंटू 3 स्टार, 3 स्टार विल बी प्रिंटेड, I की वैल्यू विल बी 4, तो स्टार इंटू 4, 4 स्टार विल बी प्रिंटेड, लाइक दैट 10 स्टार विल बी प्रिंटेड एट द एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, सबसे आखिरी में जो लाइन है ये वाली, इसके अंदर 10 स्टार प्रिंट हो जाएंगे मेरे, और 10th लाइन में प्रिंट हो जाएगा वो यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे जब मैं प्रिंट लिखता हूँ तो लाइन विल एग्जीक्यूट और लाइन विल चेंज ऑटोमेटिकली, दिस लाइन विल चेंज ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैंने प्रिंट दे दिया। इफ आई गिव दिस एंड मीन्स एंड ऑफ स्पेस, ठीक है, और एंड ऑफ डबल स्पेस, देन इट विल नॉट print in next line। ठीक है, it will print in the same line। ठीक है, it will print in the same line like that। ठीक है, 1 star space 2 star space 3 star space 4 star, because I ended with space। if I ended with nothing, then it will ended with nothing। ठीक है, it if I ended with hash, ठीक है, this end function will execute like end। ठीक है, तो it will give end 1 star hash 2 star hash 3 star hash, like that it will execute। ठीक, if I if I'm not giving any end, ठीक है, so it will execute in the next line। ठीक है, this is clear, hope this is clear। हाँ, I will share the hacker rank questions link। ठीक है, in the chat box in the WhatsApp group I will share। ठीक है, so is this is clear guys, this simple pyramid is clear।
ठीक है. So we'll move forward to our next topic, that is string slicing. ठीक है. What is string slicing and how we can use string slicing? ठीक है. So let's say we have 17 members in our chat or in our this workshop. ठीक है. हमारे पास 17 मेंबर है. ठीक है. और let's say I just want, यार मैं 17 मेंबर्स को सबको ना केक बांट दूं. ठीक है. आई जस्ट वांट यार कि ये पहला दूसरा दिन है वर्कशॉप का, एंड आई जस्ट वांट कि मैं इन 17 मेंबर्स को ना केक बांट दूं. ठीक है. लेट्स से आई एम हैविंग वन केक. ठीक है. ये मेरे पास एक केक है. ठीक है. इतना बड़ा. और मैंने ना वैष्णवी से बोला कि वैष्णवी प्लीज ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 17 मेंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इसकी ना स्लाइसिंग बना दो ऐसी. ठीक है. इसको ना काट के यू कैन डिस्ट्रीब्यूट इन दिस 17 मेंबर्स ऑफ आवर क्लास. ठीक है. इन सब की ऐसी स्लाइसिंग बना दो, छोटी छोटी स्लाइसिंग कर दो, इसको छोटे छोटे पीस कर दो. तो सिंपल सेम चीज होती है स्लाइसिंग. स्ट्रिंग में भी स्लाइसिंग ऐसी होती है. लेट्स से आई एम हैविंग वन स्ट्रिंग कॉल्ड केक, CAK, केक, and I just want to slice it. Slice it means I just want this part, CA. I just want CAKE. ठीक है. और I just want whole string. I just want whole cake. ठीक है. So this is slicing, guys. Slicing means to to slice something or to get a small part of one big string. To get a small part of one big string. This is slicing, guys. Okay. The same thing happened with cake. We have one big cake and I just want to slice it and I just want to distribute it. Same thing happened with this slicing, string slicing. ठीक है. So string की स्लाइसिंग भी होती है, लिस्ट की स्लाइसिंग भी होती है. तो जब हम लोग लिस्ट पढ़ेंगे तो लिस्ट की स्लाइसिंग देखेंगे. अभी हम स्ट्रिंग पढ़ रहे हैं तो हम लोग स्ट्रिंग की स्लाइसिंग देख रहे हैं. ठीक है. तो स्ट्रिंग की स्लाइसिंग देख रहे हैं अभी हम. ठीक है. लिस्ट की स्लाइसिंग भी हम पढ़ेंगे आने वाली क्लासेस में. ठीक है. So let's say I am having one string. ठीक है. आई एम हैविंग वन स्ट्रिंग दैट नेम इज अनीता. ठीक है. सो आई एम हैविंग वन स्ट्रिंग दैट इज एस एंड एस नेम इज अनीता, लेट्स से. ठीक है. अनीता. एंड दैट स्ट्रिंग इज लाइक की आई जस्ट वांट दिस टू लेटर of this string, or I just want last two letter of the string, or I just want the full string. ठीक है. ठीक है. ऐसा. और अपन एक बड़ा नाम ले लेते हैं. ठीक है. अपन एक बड़ा नाम ले लेते हैं. लेट्स से हेलो. ठीक है. हेलो वर्ल्ड ले लिया. अब ये थोड़ा सा बड़ा नाम हो गया. ठीक है. So I just want write this hello or this three or four letter from this string, or I just want this letter of a string. ठीक है. I just want to slice it. So how the slicing will work and how we can execute the slicing. So before slicing, we just want to know about indexing. What is indexing? So in string or in list or tuple or dictionary, in any data structure in Python, the indexing start from 0. So here this h will execute, or this address, the address of h is 0. Okay, because it is on the first position. The address of this e is at one position because this is stored at one position. So the address will start from 0 to n minus 1. ठीक है. n is length of string. ठीक है. So this h is executed at 0 position, this e is executed at 1 position, this l is executed at 2 position, this l is executed at 3 position, this o is executed at 4 position. Like that it will work. ठीक है. तो किसी की भी एड्रेसिंग स्टार्ट होती है 0 से और n-1 तक उसकी एड्रेसिंग जाती है. ठीक है. तो दिस इज इंडेक्सिंग, गाइस. ठीक है. सो द इंडेक्स ऑफ h इज 0. ठीक है. द इंडेक्स ऑफ e इज 1, द इंडेक्स ऑफ l इज 2. लाइक दैट इट विल वर्क. ठीक है. तो मैं को सो आई जस्ट वांट दिस थ्री लेटर. आई जस्ट वांट दिस थ्री लेटर. ठीक. आई जस्ट वांट दिस थ्री लेटर. तो हाउ इट विल वर्क? ठीक है. आई वुड टेक फ्रॉम 0, और इफ आई वांट this letter, I just want this first letter. So first letter is of 0th position. So I will tell Python that please print s of 0. ठीक है. s of 0 में s of 0th position. ठीक है. Whatever the character would be at 0 position, it will be printed. ठीक है. So if I execute this, h will be printed. ठीक है. If I want this I, so I will give this one position. ठीक है. So one position member or one position character will be printed. ठीक है. If I would give two, so two character member will be printed. ठीक है. The two will be printed. Whatever it will be at 2. ठीक है. If it is f, then f will be printed. ठीक है. Like that it will work. So if I want this two numbers, ठीक है, h and e I just want. So I will start from 0 because I want this 0
एंड आई वांट दिस वन, ठीक है, आई वांट दिस जीरो पोजीशन नंबर दैट इज एच, आई वांट दिस ई बिकॉज इट इज एट वन पोजीशन, ठीक है। सो आई विल गिव फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन, एन माइनस वन मीन्स जीरो वन, ठीक है, टू टू। अगर मैं इसको जीरो टू दूंगा तो ये मेरे को एच और ई प्रिंट करके देगा, ठीक। एच और ई कैसे प्रिंट करके दे रहा है, क्योंकि ये एन माइनस वन तक चल रहा है, इट विल एग्जीक्यूट टू एन माइनस वन, ठीक है। सो हाउ इट इज एग्जीक्यूटिंग, इट इज प्रिंटिंग एच बिकॉज इट इज एट जीरो पोजिशन, इट इज प्रिंटिंग ई बिकॉज इट इज एट वन पोजिशन, ठीक है। एंड हाउ वी आर गिविंग जीरो टू टू, जीरो टू टू मीन्स एन इक्वल्स टू टू, तो एन इक्वल्स टू टू इक्वल्स टू टू माइनस वन इक्वल्स टू वन, ठीक है। तो ये किस किस को प्रिंट करके देगा, ये जीरो को प्रिंट करेगा और ये वन को प्रिंट करेगा। तो जीरो पोजीशन पे क्या है, जीरो पोजीशन पे एच है, और वन पोजीशन पे क्या है, ई है, तो एच और ई विल बी प्रिंटेड। इफ आई वांट, लेट्स से इफ आई वांट थ्री कैरेक्टर ऑफ दिस स्ट्रिंग, if I want three character of this string, first three character, this H, this E, and this L. So how it would be printed? I just need to write here three, ठीक है। जब मैं यहाँ पे थ्री लिखूंगा तो यहाँ पे तीन प्रिंट होंगे, ठीक है, H here. If I want this three character, ठीक है, मेरे को ये चार चाहिए, तो मेरे को फिर यहाँ पे फोर लिखना पड़ेगा, ठीक है, जीरो से फोर तक की चीजें आएंगी, ठीक है। तो ऐसे प्रिंट होगा, ठीक है। ये स्लाइसिंग होती है, ठीक है। इसमें एक रिवर्स इंडेक्सिंग भी होती है। अभी मैंने इंडेक्सिंग बताया ना तुमको, इंडेक्सिंग कैसे बताया, इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडेक्सिंग जीरो से स्टार्ट होती है एंड इट विल एग्जीक्यूट टू एन माइनस वन, ठीक है। अगर तुमसे इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज इंडेक्सिंग इन पाइथन, तो इंडेक्सिंग इज बेसिकली एड्रेस ऑफ एनी कैरेक्टर इन पाइथन एंड इट इज स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू एन माइनस वन। अगर तुमसे इंटरव्यू में पूछ लिया, इफ इंटरव्यू विल आस्क कि मेरे को रिवर्स इंडेक्सिंग बताओ, व्हाट इज रिवर्स इंडेक्सिंग, सो रिवर्स इंडेक्सिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, ठीक है, एंड इट विल स्टार्ट फ्रॉम माइनस वन एंड गोज टू माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, लाइक दैट इट विल गोज, ठीक है। सो लेट्स से इफ आई वांट टू प्रिंट द लास्ट कैरेक्टर, इफ आई वांट टू प्रिंट दिस लास्ट कैरेक्टर, तो कैसे प्रिंट कर सकता हूँ, एक तो मैं यहाँ से जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे प्रिंट कर दूं, या फिर मैं डायरेक्टली यहाँ पे माइनस वन लिख दूं, ठीक है। तो माइनस वन से मेरा लास्ट का कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा, तो ये रिवर्स इंडेक्सिंग हो गई, इसको रिवर्स इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है, रिवर्स फॉर्म में चलती है ये, ठीक है। This is the reverse index. If I want to print the the second largest, or I could say second last number, ठीक है, if I want to print the second last character or any number from the string, so how I can print, I will give here minus two, ठीक है, मैं यहाँ पे minus two दे दूंगा, then it will give L, ठीक है। If I want to print this R, then I will give minus three. So this is the reverse indexing, guys, ठीक है। तो maybe you might be asked, interviewer will might be ask you, right, this type of question, what is indexing and what is reverse indexing, or tell me difference between indexing and difference between indexing and reverse indexing, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है तुमसे, ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर, ठीक है। तो दिस इज इंडेक्सिंग एंड दिस इज रिवर्स इंडेक्सिंग, ठीक है। एंड स्लाइसिंग तो मैंने बता ही दिया है, right, to get a small part of any string from a given string, ठीक है, ठीक है, to select a small part of any string from the given string, this is slicing, ठीक है। So hope slicing and indexing and reverse indexing is clear, guys. If it is clear, you can type yes in the chat box. If you have any doubt, any question, any query, you can ask in the chat box, we'll discuss, ठीक है, we'll discuss. If you have any question, any query, you can ask in the chat box. If this is clear, you can type yes or you can type clear in the chat box. ठीक है, ठीक है, ओके, बाकी लोगों को भी क्लियर होगा, ठीक है, ओके। सो विल स्टार्ट विथ कोडिंग क्वेश्चंस, ठीक है। अभी हमने इटरेशन पढ़ लिए, हमने नेस्टेड लूप्स पढ़ लिए, हमने पैटर्न प्रिंटिंग पढ़ लिया और हमने स्लाइसिंग पढ़ लिया, ठीक है। आज के हमारे टॉपिक्स हो गए और हमने एक क्वेश्चन हैकर रैंक का भी सॉल्व कर लिया, ठीक है। विल मूव फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक छोटा सा क्वेश्चन करता है हैकर रैंक वाला, ठीक है। एंड दिस इज केस, अपर केस और लोअर केस कैरेक्टर क्वेश्चन, ठीक है। उसके पहले मैं बता देता हूँ कि अपर केस लोअर केस कैसे काम करते हैं पाइथन में, एंड हाउ द लोअर केस अपर केस स्ट्रिंग और नंबर इज वर्किंग, ठीक है। सो लेट्स से आई एम हैविंग अ स्ट्रिंग एस, और इस स्ट्रिंग के अंदर मेरे पास नाम है, मेरे पास नाम वैष्णवी है और उसके अंदर वी कैपिटल है और आई एस एच
नवी और VAIY ये स्मॉल में है, ठीक है। तो V कैपिटल में, बाकी सारी चीजें स्मॉल में है, ठीक है। तो V कैपिटल में मीन्स ये अपर लेटर है, ठीक है, अपर में है, ठीक है। और ये जो है ये लोअर में है, ठीक है, ये लोअर में है, ठीक है। इसको अपर कैरेक्टर बोलेंगे, इसको लोअर कैरेक्टर बोलेंगे, ठीक है। एंड वी कैन स्वैप दिस केस ऑल्सो। लेट्स से मेरे पास एक स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का नाम एस है, और एस के अंदर मेरे पास आदित्य लिखा हुआ है, ठीक है। लेट्स से आदित्य लिखा हुआ है, और आदित्य के सारे केस ना अपर केस हैं, ठीक है। आदित्य के सारे केस अपर केस लेटर, ठीक है। एंड आई वांट टू प्रिंट इट टू द लोअर केस, ठीक है। इसको मेरे को ना लोअर केस में प्रिंट करना है, तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लोअर फंक्शन लगाऊंगा, ठीक है, लोअर फंक्शन लगाऊंगा। और लोअर फंक्शन की हेल्प से मैं इसको प्रिंट कर सकता हूँ एस को, ठीक है। इट माइट बी गिव एरर, ठीक है, बिकॉज एस डॉट लोअर होता है, एस डॉट अपर होता है, ठीक है। हमने उसको बीच में रख दिया था, ठीक है। सो आदित्य विल बी प्रिंटेड एट लोअर कैरेक्टर, ठीक है। ये लोअर पे प्रिंट हो गया, अभी अपर में था, मतलब अभी ये पूरे के पूरे अपर केस में थे, ठीक है, कैपिटल लेटर में थे। अभी इसको मैंने लोअर में प्रिंट कर दिया। अगर एक दो भी लोअर में होंगे तो भी फिर ये लोअर में प्रिंट हो जाएगा शायद। लेट्स से आई एम हैविंग दिस स्ट्रिंग, और इसमें आधे अपर में है और आधे लोअर में है, और मेरे को सारे के सारे लोअर में चाहिए, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली लोअर में कन्वर्ट कर दूंगा। एंड इफ आई वांट दैट की सारी स्ट्रिंग मेरी अपर में प्रिंट हो, तो आई विल से इट अपर, ठीक है। तो इट विल प्रिंट इट एन अपर केस, ठीक है। तो ये अपर केस में हो गया, ठीक है। दिस इज क्लियर गाइस, कैसे अपर केस और लोअर केस वर्क करता है पाइथन में। होप दिस इज क्लियर, ठीक है। विल डू दिस क्वेश्चन, ठीक है, विल डू दिस केस क्वेश्चन, केस चेंज क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला है, ठीक है। Let's read this question, ठीक है, let's understand this question, what the question is trying to say. So there is a sequence of word in camel case. So there is a sequence of words in camel case of a string letter s have having a following properties, ठीक है। It is containing one or more than one words, ठीक है। ऑल द लेटर ऑफ फर्स्ट वर्ड इज लोअर केस, ठीक है। सारे का सारा लेटर का पहला जो वर्ड होगा वो लोअर केस में होगा, मीन्स स्मॉल लेटर में होगा। फॉर ईच ऑफ सब्सिक्वेंट वर्ड द फर्स्ट लेटर ऑफ अपर केस और रेस्ट और द लोअर केस, ठीक है। तो हर एक वर्ड का, लेट से कि मेरे पास एक वर्ड है, लेट से मेरे पास एक वर्ड है चेयर, तो चेयर का जो पहला लेटर होगा ना वो कैरेक्टर, ये जो होगा कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होंगे, ठीक है। फिर अगर मेरे पास टेबल आ गई, तो टेबल का पहला कैरेक्टर टी कैपिटल होगा, बाकी सब स्मॉल होगा, ठीक है, टी कैपिटल होगा। लेट से मेरे पास ऑथर है, तो ऑथर का ए पहला कैपिटल होगा, UTHUR ये मेरा स्मॉल में होगा। तो ऐसा ये तीन कंडीशन दी है, ठीक है। पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन, ठीक है। तीन कंडीशन दी है इसमें। अब हमको एक स्ट्रिंग एस दी हुई है, इसमें ऐसा एग्जांपल मिलेगा, लेट्स से आई एम हैविंग वन स्ट्रिंग एस, उसके अंदर वन लिखा हुआ है, तो वन, ठीक है, स्टार्टिंग से ये छोटा होगा, ठीक है, ये स्मॉल लेटर में होगा। टू, दैट इज कैपिटल लेटर टू, एंड थ्री, दैट इज कैपिटल लेटर थ्री, ठीक है। तो मेरे पास इसमें कितने वर्ड है, मेरे पास तीन वर्ड है, मेरे पास एक वन वर्ड है, एक टू है और एक थ्री है, तो मेरे पास तीन वर्ड्स हैं, ठीक है। तो आई जस्ट नीड टू प्रिंट थ्री एट द एंड, ठीक है। मेरे को आउटपुट में थ्री चाहिए, क्योंकि तीन वर्ड्स हुए हैं इसके अंदर, पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड। आई नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्ड इन द स्ट्रिंग, ये क्वेश्चन है, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्टिंग से बताता हूँ, ठीक है। लेट से मेरे पास एक ही स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मेरे को तुम लोग बताओ इसके अंदर कितने कितने वर्ड्स हैं, कितने वर्ड्स हैं मेरे पास, मेरे को बताओ। देखो, एक तो सेव हो गया, एक वर्ड सेव, चेंज सेकंड वर्ड, इन थर्ड वर्ड, द फोर्थ वर्ड, एंड एडिटर इज द फिफ्थ वर्ड, ठीक है। चार पांच वर्ड होगा इसमें। तो आई नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्ड इन द गिवन स्ट्रिंग, दिस इज द क्वेश्चन गाइस। आई हैव शेयर्ड यू अ प्रॉब्लम लिंक, ठीक है, आई हैव शेयर्ड यू अ प्रॉब्लम लिंक। लेट मी शेयर वंस मोर, वंस अगेन, ठीक है, मैंने शेयर किया, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है गाइस, इसके अंदर क्या करना है, हमको नंबर ऑफ वर्ड फाइंड करके बताना है इस स्ट्रिंग के अंदर। ये कि मेरी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग के अंदर कितने नंबर ऑफ वर्ड है, नंबर ऑफ वर्ड फाइंड करने हैं मेरे को इस स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। और वर्ड कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो भी वर्ड होगा वो ना कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। तो आई कैन डिफरेंशिएट, यार ये कैपिटल से स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे वर्ड होगा एक, ये कैपिटल से स्टार्ट हो तो यहाँ पे एक द वर्ड होगा, ये आई कैपिटल से स्टार्ट होगा तो यहाँ पे एक वर्ड होगा, सी से स्टार्ट हुआ तो एक वर्ड होगा, और पहला तो स्मॉल में हो गई सही, स्टार्टिंग वाला तो स्मॉल में हो गई सही, जो कि कंडीशन मेरे को ऊपर ही बता दी गई थी, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन बता दी गई थी, पहला मेरा जो होगा वो स्मॉल में लोअर केस में होगा, फर्स्ट वर्ड विल बी इन अ लोअर केस, ठीक है, ये मेरे को बता दिया गया था पहले, ठीक है। तो हाउ आई कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम,
ठीक है, कैसे सॉल्व करूंगा मैं? ठीक है, तो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी इटरेशन से। जो फॉर लूप पढ़ा था ना हमने, उससे हम क्या करेंगे, इस स्ट्रिंग के अंदर, इस स्ट्रिंग को, ये जैसे मेरी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग को इटरेट करवाएंगे यहाँ से स्टार्टिंग से। ठीक है, और जहां पे भी कैपिटल लेटर आएगा, जहां पे भी मेरा अपर केस का लेटर आएगा, वहां पे मैं ना एक, वहां पे मान लूंगा कि यहाँ पे एक वर्ड है। ठीक है, वहां पे वर्ड है जहां पे भी अपर केस आया। लेट से यहाँ पे सी पे एक अपर केस आया, तो आई विल चेक कि यार यहाँ पे एक यहाँ पे एक वर्ड है। फिर आई पे एक अपर केस आया, मतलब यहाँ पे एक वर्ड है, मतलब दो वर्ड हो गए मेरे पास। फिर दा पे आया, तो फिर तीन वर्ड हो गए। फिर मेरे पास ई पे आया तो चार वर्ड हो गए। ठीक है, फोर वर्ड वुड बी देयर। और फिर एक स्टार्टिंग में वर्ड तो है ही सही मेरा ये, तो पांच वर्ड हो गए। ठीक, ऐसे मैं काम करूंगा इसमें। ठीक है, तो कोडिंग करते हैं इसकी। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है ये? ठीक है, किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट है कि यार क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हम, हमारे पास ये स्ट्रिंग दी हुई है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्ड इन द स्ट्रिंग। दिस इज द सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। वी जस्ट नीड टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द स्ट्रिंग। ठीक है। ठीक है, इसके अंदर ना एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन हमको पूरा करना है। ठीक है, ये पूरा का पूरा लिखा हुआ है, हमें कोई इनपुट आउटपुट कुछ भी नहीं लेना। हमको सिंपल सा ये फंक्शन पूरा करना और रिटर्न करके देना। ठीक है, रिटर्न मतलब कि प्रिंट करके देना। ठीक है, तो मेरे पास स्ट्रिंग एस है, और इस स्ट्रिंग को मैं इटरेट कराऊंगा फॉर आई से। फॉर आई इन फॉर आई इन एस। आई इन एस मतलब कि मैं आई इन एस करूंगा और मैं एक ले लूंगा वैल्यू काउंट, और काउंट की वैल्यू में रख दूंगा वन से स्टार्ट। वन से स्टार्ट क्यों रख रहा हूँ? क्योंकि मेरे पास एक लोअर केस वाला वर्ड तो स्टार्टिंग में है ही सही, इसलिए मैं वन से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एक स्टार्टिंग वाला जो वर्ड है ना मेरा, स्टार्टिंग वाला, वो तो लोअर केस है ही मेरा, और उसको मेरे को कैलकुलेट करना है, तो काउंट की वैल्यू वन से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं इसलिए। ठीक है, अगर वो नहीं कैलकुलेट करते अपन तो वो जीरो से स्टार्ट करते अपन काउंट। तो काउंट की वैल्यू इसलिए वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन। ठीक है, तो फोर आई इन एस। अब जहां जहां पे भी मेरे को क्या बोलते हैं, अपर केस आएगा। ठीक है, इफ इफ आई डोट इज अपर, so it will give me a true value or false value. ठीक है, so if I is upper then it will give me a true value, if I is lower then it will give me a false false value. ठीक है, तो अगर अपर होगा तो ट्रू वैल्यू आएगी, और अगर ट्रू वैल्यू आएगी, अपन ने क्या सीखा था कि इफ द लेटर इज इन अपर केस, ठीक है, इफ द वर्ड इन इज इन अपर केस, अगर एक भी लेटर उसका अपर केस में हुआ देन मैं उसको वर्ड काउंट कर लूंगा, एक वर्ड काउंट कर लूंगा। ठीक है, अगर दूसरा, अगर मेरे पास लेटर कैपिटल में आया तो दो वर्ड काउंट कर लूंगा, तीसरा है तो तीन काउंट कर लूंगा। ठीक है, तो विल इंक्रीज द काउंटर पार्ट, दिस काउंटर वेरिएबल वी विल इंक्रीज। ठीक है, तो काउंटर की वैल्यू, फिर जो काउंट की वैल्यू होगी, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। ठीक है, काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन, ये हो जाएगा, और आखिरी में वी विल रिटर्न और वी विल प्रिंट द काउंट। ठीक, रिटर्न भी कर सकते हो और प्रिंट भी कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, काउंट को मैं प्रिंट कर दूंगा इस अपर वाले फंक्शन से। ठीक है, वी विल रन दिस कोड। ठीक है, टेस्ट केसेस पासेस। ठीक है, पांच आने चाहिए यहाँ पे, पांच गिन के आने चाहिए, पांच आ चुके हैं। वी विल सबमिट दिस कोड, सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं। ठीक है, टेस्ट केस को भी तुम देख सकते हो कि व्हाट इज हिडन टेस्ट केस को आप अनलॉक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इस अपर फंक्शन से हमें पता चल जाएगा कि द वैल्यू ऑफ आई इज इन अपर केस और इज इन लोअर केस। ठीक है, लाइक दैट इट विल वर्क, इट विल गिव मी ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। So if it is giving me a true value, then count equals to count plus one, means word will be calculated, one word will be added in this counter variable, or it will return after that. ठीक है, इस वाले काउंट को ना ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं। ठीक है, इसका एक और फंडा, ऐसे भी लिख सकता हूँ, काउंट प्लस इक्वल्स टू वन। ठीक है, ये एक सिंपल सा मेथड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी सेम होता है, इसका मतलब है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस वन। ठीक है, तो ये चीज भी सेम है और ये चीज भी सेम है, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है, तो हम लिखते हैं ना आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। ठीक है, इफ आई हैव टू राइट आई इक्वल्स टू आई प्लस वन। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आई प्लस इक्वल्स टू वन। ठीक है। ठीक है, तो ये सेम चीज है, ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम। इफ आई वांट अ प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, लेट्स से आई वांट अ प्रोडक्ट, तो आई इक्वल्स टू आई इंटू फाइव, लेट्स से आई इंटू फाइव, इंटू फाइव और फोर। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, आई इंटू इक्वल्स टू फाइव।
तो इसका मतलब सेम ही है। आई इंटू इक्वल टू 5 मतलब आई इक्वल टू आई इंटू 5, और आई प्लस वन इक्वल टू 5 मीन्स आई इक्वल टू आई प्लस वन। ठीक है, ये सेम चीज है गाइस। अगर आप इसको इसको एग्जीक्यूट करोगे सेम आंसर आएगा, इसको एग्जीक्यूट करोगे सेम आंसर आएगा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अपना हो चुका है। ठीक है, हैकर रैंक का। इसको भी मैं रन और सबमिट करके बताता हूँ। ठीक है, इट विल गिव मी अ सेम आंसर। सो होप यू हैव डन दिस क्वेश्चन गाइस। ये वाला क्वेश्चन सबने कर लिया होगा। इफ यू हैव डन यू कैन यस, यू कैन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, क्वेरी और डाउट इन दिस क्वेश्चन or in this code, I will explain you guys, ठीक है, how this is working and how the counter variable is upper function is working in this code. ठीक है, डन।